I think we shall start because already 12 past 5. So let him join later. We'll start. In our class content for today, we'll be doing block 3, limit, continuity, and differentiability of a function, unit 9 and unit 10. In unit 9, we have this limit of a function and algebra of limits, and in unit 10, continuous function. So we'll discuss briefly about our objective for the class are understanding the concept of a limit, interpret limits graphically, numerically, and algebraically, evaluate limits using basic techniques, apply algebra limits to compute complex limits, identify limits that do not exist, and define continuity of a function at a point and over an interval, identify types of discontinuities, determine continuity using algebraic and graphical methods, apply property of continuous function, understanding the intermediate value theorem. So in our first slide for the unit 9, introduction to limit, the concept, first we'll understand the concept of limit, which describe the behavior of function as the input approaches a specific value. So limit forms the foundation of differential and integral calculation. A limit examines what value a function approaches, not necessarily what is equal. A real value function fx is said to have limit L at a point x equal to a. So here we can see how the function of fx will look. This one for all. This a opposite ulta reverse of a. So you have known the symbol for all. Then greater than equal to 0. This is the equation. How does it look? If this equation says that okay, I'll just maybe there was a network issue. I'll just turn on my video. Such that magnitude of fx minus L less than epsilon wherever 0, this one. These are the equation. Then we write limit of x tends to a, fx equal to L. That is, we can set fx as close as we want to L by making x sufficiently close to a. So the function value at x equal to a may equal the limit be different from the limit be undefined. So these are the conditions for the function at x equal to a. It can be the function may. It's always say may be equal the limit be different from the limit be undefined. So limit from graph. How do we generate limit from graph? Is observe the y values as x approaches a point from both sides. From both sides, this is the diagram, the sample diagram, how limit can be generated. Like if left hand limit equal to right hand limit, left hand limit and equal to right hand limit, the limit exists. Graphically indicators, open circle, jump discontinuous. Activities, one side limit. Left hand limit, how it looks, left hand will be limit within bracket x tends to a to the power minus 1. If it is minus 1 in a to the power minus 1, then it's supposed to be left hand limit, and right hand limit if within the bracket x tends to a to the power positive plus value, then it is said to be right hand limit. So a limit exists only if
both one-sided limits are equal. So this left-hand side limit and right-hand side limit, if it is equal, then what it say? It's the limit exists. So here we'll say limit from a table, analyze value of fx as x approaches a. This is a, not this is variable a, not the article a. So use value slightly less than greater than a. So this variable helps estimate limit when algebraic method are complex. So here we'll see this video from the YouTube to make you more understandable. But what I'm going to do is talk about limits or left, right, and general. So we have either a little minus here, this little plus, and this little zero, or and just a regular zero, right? So this is what we call the left hand, the right hand, and the general limit. So we kind of understand. The first thing we're going to do is evaluate the function. You guys remember, you know, if I said f of x equals x squared plus 1, and then I said f of 0, basically you just plug 0 in for x and then find the output value, right? Yes? Okay. And actually, I don't know, let me actually change this. 1, 2, 3. Let's change this to f. We'll make it a bit speed. Oh, let's do f of 4 again. So you guys agree with me? If I were to plug in 0 there, I'd still get 3, right? I'm just making up a power, like the emphasis of the 4th power. Okay. So you guys can see that point because this point has the input of 0 and the output of 3, right? You guys are good, correct? Yes. So f of 0, when you plug in 0, the output value you get you guys see the graph. You didn't need to wait. I was doing this for review. But if you were just given a graph and I say what's f of 0, you're basically just looking at the graph and saying what's the output? You can say 1, 2, 3. Okay? So that's the evaluating the function. That is not talking about the limits. The limit says what is the value that you are approaching. As you're getting really, really close, what value are you approaching? So this is the value of the function at 0. That's not what we're asking the limits. The limit from the left means from your left hand, as x gets really, really close to 0, as it gets really, really close to 0, what f of x value are you approaching? Okay? So, follow my left hand, getting really, really close. Again, get closer, closer, closer. So as I get really, really close to 0, what f of x value am I approaching? 3. What about for my right? Can I get really, really close to 3. What about for my left and my right? Approaching 3. Okay, now obviously this is a continuous function, so it's nice and easy, and we'll do discontinuous functions next. But I want you guys at least to have a general idea of everything. You guys take everything off your desk. So इस वीडियो में कुछ समझ में आया? चिट्टू, any doubt? No, madam. हाँ, तो ये वीडियो YouTube में अवेलेबल है. मैं शॉर्ट वीडियो डाली because it's very easier to explain. जैसे ग्राफ से कैसे और मतलब जनरेट होता है और टेबल कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे लिमिट फ्रॉम टेबल लिखा है हेडिंग में. तो यहाँ पे ग्राफ अगर है उसमें से हमें लिमिट निकालना है तो किस तरह से निकालें. फर्स्ट f(0) मतलब जो a का वैल्यू वो क्या लिखा है यहाँ पे 0 लिखा है वीडियो में. तो f(0) मतलब जो a का वैल्यू है वो क्या हो गया. सबसे जीरो के वैल्यू जो है a में कितना है उस ग्राफ में क्या है. नियरेस्ट जो है 3 है. एंड अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी निकाला नियरेस्ट टू f(o) मतलब f(0) में fa लिखा है लिमिट और x टेंड्स टू 0 to the power -1 लिखा है ना. तो 0 से सबसे नियरेस्ट क्या होगा 3 अगेन एंड 0 से नियरेस्ट इन द राइट हैंड साइड आल्सो to the power 0 प्लस देन उसमें भी 3 सबसे नियरेस्ट है. तो दोनों इक्वल है. अब हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है ना. तो ये है अलजेब्रा में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. तो यहाँ पे मैंने कुछ दिया है. टू let fx and gx are two real value function such that limit x tends to a.
a जो है वो क्या वैल्यू होगा, मे बी यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है। देन fx जब x टेंड्स टू a होगा, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं a का वैल्यू 1 है, तो x की जगह पे हम क्या बिठाएंगे 1 इक्वल टू l, एंड लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे कुछ और लेते हैं मे बी 2, तो g टू द पावर सॉरी g x में x का वैल्यू में 2 लिख दिया इक्वल टू m, एंड k भी एनी कांस्टेंट, देन अगर k कांस्टेंट है, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन ये याद रखना अलजेब्रा में कैसे होता है, लिमिट fx इक्वल टू l होता है एंड लिमिट gx इक्वल टू m, एंड k क्या है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू में अगर a में देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx इक्वल टू l प्लस माइनस m होगा, क्योंकि दोनों को ऐड या डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उन लोगों का जो इधर इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो भी प्लस माइनस हो जाएगा। देन लिमिट b का, ये रूल्स कंडीशंस ऑफ अलजेब्रा लिमिट है, ये कंडीशन याद रखना है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस एंड द फ्यूचर रेफरेंस। तो सेकंड में क्या है, बी में फिर से अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, सपोज fx एंड gx का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो लिमिट fx यहाँ पे क्या है ओवरऑल में लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू a fx dx, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a fx, एंड उसको डिवाइड मतलब डिफरेंट करने से दोनों के सामने लिमिट लिख दिया, तो क्या हो गया, जो वैल्यू है इक्वल टू के बाद हमारा lm को भी मल्टीप्लिकेशन करना है। एंड c में अगर डिवीजन है fx डिनोमिनेटर और ये जो है ऊपर का नोमिनेटर, क्या होता है कि उसको भी सेम तरह से प्रोवाइडेड m नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे याद रखना है m 0 ना हो, है ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए जो m का वैल्यू है। और d में क्या कंडीशन है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऐड होता है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू k fx इक्वल टू k l होगा, यहाँ पे gx का वो कंडीशन नहीं है अगर कांस्टेंट वैल्यू वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, तुम्हारा ये SLM से ही लिया हुआ ये एग्जांपल। तो एग्जांपल इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 8, यहाँ पे ये वाला कंडीशन दिया है, जो थर्ड सी वाला कंडीशन दिया है। तो क्या है एग्जांपल में, ये x टेंड्स टू यहाँ पे 8 लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 या 8 है, ये 8 है, तो क्या है यहाँ पे x की जगह पे हम x वैल्यू पुट करेंगे, बट यहाँ पे फर्स्ट हमें जो कंडीशन है वो लिखना है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। fx इक्वल टू px और g, यहाँ पे qx लिया है यहाँ, तो वेयर px का ऊपर का वैल्यू 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये ऊपर का वैल्यू, और qx होगा हमारा नीचे का वैल्यू, तो 5x प्लस 4, ऑल्सो q3, ये 3 है, x टेंड्स टू 3 है, 8 नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। कुछ समझ में Am I audible? यस मैडम, अभी आया, साउंड आया। वो थोड़ा नेट का इशू, हाँ, नेटवर्क का। तो कुछ डाउट है अभी यहाँ तक? नहीं, ये 3 होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है, x टेंड्स टू 3 ना, हाँ x टेंड्स टू 3 होगा ना, हाँ वो x टेंड्स टू 3 है, 8 नहीं है, 3 है। यहाँ पे देखो क्यों यहाँ x का वैल्यू हम जब डालेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है,
प्लस हम ये सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये जो कंडीशन है, हमने जो सी का कंडीशन देखा है यहाँ पे, ये वाला यूज होना है। तो प्रोवाइडेड m जो q यहाँ पे qx है, तो वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले का, और x की जगह पे जो भी वैल्यू है टेंस टू 3 है, वो हम इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद ये इनपुट किया, और 2 मल्टीप्लाई विद 3 टू द पावर 2, एंड यहाँ पे 3 into 3 एंड प्लस 1। तो पूरा ये करने के बाद 10 आ गया, और इसमें 3 वैल्यू पुट, x की जगह पे 3 वैल्यू पुट करने के बाद 19 आ गया। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, 10/19। तो इस तरह से अलजेब्रा ऑफ लिमिट, जो कंडीशन पहले वाला दिखाया था, वो मतलब याद रखना है। इतना याद करने के लिए कुछ नहीं है, बस वो आइडिया करके करना है। और इवेलुएटिंग लिमिट्स अलजेब्रिकली, फिर से ये देखते हैं सिंप्लीफिकेशन टेक्निक क्या क्या है उसका। फैक्टरिंग, ये YouTube में भी मिल जाएंगे अगर रेफरेंस के लिए आपको पढ़ना है। आपके SLM में भी बहुत कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, वो देख लेना। यहाँ पे क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक के अंदर फैक्टरिंग टेक्निक होता है, रैशनलाइजेशन, कैंसलिंग कॉमन टर्म्स, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सब देख लेना। लिमिट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, क्या होता है यहाँ पे, लिमिट क्या कौन सा एग्जिस्ट नहीं होगा, जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स आर डिफरेंट। जैसे पहले बताया, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का अगर सेम होने से लिमिट एग्जिस्ट होता है, अगर डिफरेंट है तो लिमिट वोंट एग्जिस्ट। और फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं होगा, दूसरा कंडीशन है फंक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विदाउट बाउंड। अगर बाउंड के बिना फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट थर्ड वन है इन्फिनिट ऑसिलेशन नियर ए पॉइंट। जैसे इन्फिनिट ऑसिलेशन कब होगा, जब पॉइंट के एकदम मतलब बहुत दूर होगा या फिर पास में होगा, तो उस तरह का कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। सो इन्फिनिट मतलब, इन्फिनिट तो मतलब बहुत दूर होने से, यहाँ पे फाइनाइट नहीं बोला, इन्फिनिट है। जब वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब नियर द पॉइंट में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मे बी 1.00 समथिंग लाइक दैट, उस टाइप का कुछ होगा, दैट इज इंफिनिटी वैल्यू, तब ये लिमिट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ओवरव्यू में हम देखेंगे इफ लिमिट एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट होगा। एक तो डू नॉट एग्जिस्ट देख लिया, कब एग्जिस्ट होगा, जब लिमिट fx ये इक्वल टू सेम होगा। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है जब, और फिर ये फंक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विदाउट बाउंड है। यहाँ पे बाउंड कैसे होगा, ये सेकेंड वाला विद बाउंड जब होगा तो एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे सी एफ एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स, तो ये इक्वल होगा, इधर भी जीरो इधर भी जीरो होने से। तो सिमिलर टू द फर्स्ट वन, इसका लिमिट ये टू है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स अगर इक्वल है, एंड ये लिमिट सी कंस्टेंट वैल्यू और ये कंस्टेंट, ये जब सॉल्व करके वैल्यू सेम होगा तो फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, देन it's said to be existing। and limit fx gx equal to fx और ये लिमिट gx ये भी सेम होना है। नेक्स्ट इवैल्यूएटिंग लिमिट्स अलजेब्रिकली, इसमें और भी कंटिन्यू करते हैं। कैलकुलेटिंग ए लिमिट व्हेन fx gx हैज द इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 0, अगर ऊपर भी 0 होगा नीचे भी 0 होगा, तब क्या करेंगे, है ना। फर्स्ट वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर फंक्शन हैज एप्रोप्रिएट फॉर्म एंड कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड इमीडिएटली यूजिंग द लिमिट लॉ। पहले तो हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो लिमिट है वो एप्रोप्रिएट फॉर्म में है कि नहीं, जो कंडीशन दिखाया है ABCD उस तरह से है कि नहीं, फर्स्ट वो चेक करना पड़ेगा to evaluate using the limit laws। When we then need to find a function that is equal to hx equal to fx by gx for all x
नॉट इक्वल टू ए। यहाँ पे सेम कंडीशन है, जो सी है, यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया, वहां पे क्यू था जो हमारा एग्जाम्पल में, यहाँ पे एक्स था। तो ये एक्स जो है, एक्स का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, तो वेरिएबल ए का वैल्यू जीरो होगा या फिर वन होगा, कुछ भी जो वैल्यू देंगे ओवर सम इंटरवल कंटेनिंग ए। To do this, we may need to try one or more of the following steps. ठीक है, ये SLM का पार्ट है। तो SLM में स्टेप्स दिखेंगे। 1 मिनट, शायद मैंने यहाँ पे लिखा है। एक मिनट। हाँ, ये इवैल्यूएटिंग, हाँ, एक मिनट, ये फिर से शेयर कर देती हूँ। विजिबल है? यस मैडम। हाँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक, तो सो दैट लिमिट, आई थिंक ये, हाँ, दूसरा एग्जाम्पल है, x टेंड्स टू 3, x टू द पावर 2 इक्वल टू 9। हमें यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है? x टू द पावर 2 इक्वल टू 9। ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड का वैल्यू दिया गया। सॉल्यूशन क्या है? ये हमारा कौन सा कंडीशन होगा? तो कंडीशन जैसे ये वाला, ये वाला ना, ये डी नंबर का है ये, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंस्टेंट है, कंस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे कंस्टेंट वैल्यू इसका x टू द पावर 2 में क्या हो जाएगा? 1 पकड़ लेंगे। सॉल्यूशन हियर fx इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। fx क्या है? हमारा x स्क्वायर है। a का वैल्यू कितना है? 3 है। l का क्या है? l हमारा लेफ्ट, जो राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है? 9। एंड ये क्या है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देन मॉड करेंगे, इसका मॉड करने से ये देखिए fx हमने यहाँ पे x स्क्वायर का ले लिया, तो करने मॉड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड जो है x स्क्वायर माइनस 9। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे। 9 क्या है? इस 9 का 3 से वो होता है, डिवाइड होता है ना, 3 3 9, तो उसको 2 पार्ट में कर लिया, एक माइनस एक x स्क्वायर है, तो उसको 2 पार्ट में कर लिया। यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 3 कर दिया है ना। और फॉर ऑल x विथ x माइनस 3 लेस देन, यहाँ पे डिवाइड कर ले, देखो ये इससे लेस देन है, और x विथ x माइनस 3 लेस देन डेल्टा है, तो विथ डेल्टा लेस देन इक्वल टू 1, तो x का x माइनस 3 का जो है वो डेल्टा से लेस देन है, और फिर डेल्टा जो है लेस देन इक्वल टू 1 फिर से हो गया, गिव्स 2। यहाँ पे x का वैल्यू जो है, हमने ये जो 2, यहाँ पे 2 कैसे आया? इसको सॉल्व करने के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। देन x 2 लेस देन x लेस देन 4, सो देयरफॉर यहाँ पे 5, यहाँ पे पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं किया करके दिखाया है SLM में, ये आप समझ रहे, ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ये जो है
उसको सॉल्व करके ये फॉर क्या करना है यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया है, ये वाला जो है ये इक्वल टू 9 है कि नहीं ये करना है हमें, हेंस प्रूव करना है। तो हाँ ये प्रूफ करना है। हाँ, हेंस प्रूव वाला वो है, एग्जांपल है। तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इंक्रीजिंग बाउंड वो हमने देखा ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला, यहाँ पे कौन सा कंडीशन था, हाँ, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड, ये और विद बाउंड, ये वाला है अभी ये कर रहे हैं हम। तो वो प्रूव करना है, हेंस प्रूव करना है। तो हमें दोनों तरफ से सॉल्व करके ये दिखाना है कि ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 3 x to the power 2 इक्वल टू 9 है कि नहीं। यहाँ पे कुछ डाउट है? नो मैडम। हाँ, तो यहाँ पे कोचन रूल फॉर लिमिट्स, यहाँ पे क्या है या इसका रूल है कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिमिट f(x) डिवाइड बाय g(x), अगर ये हमारा लिमिट का फंक्शन इक्वल टू, ये फिर से यहाँ पे अलग अलग लिखा है, लिमिट f(x) डिवाइड बाय लिमिट g(x), इसमें कंडीशन क्या होगा, लिमिट g(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, नीचे का। A common source of undefined limit, power and root rules, इसमें क्या होता है कि लिमिट f(x) to the power n इक्वल टू लिमिट f(x) to the power n, तो दोनों तरफ से सेम होना चाहिए पावर रूल में। जैसे मान लो कि लिमिट x² है इक्वल टू, सपोज यहाँ पे f(x) लिखा है ना, तो यहाँ f(x) का वैल्यू x² होना चाहिए, जैसे प्रूफ हेंस प्रूफ किया ना इस तरह से। तो यहाँ पे लिमिट रूट ओवर f(x) इक्वल टू रूट ओवर लिमिट f(x), तो ये जो है बाहर रूट ओवर बाहर भी लिख सकते हैं, लिमिट रूट ओवर f(x) होने से बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल रूल इफ लिमिट इज नॉट नेगेटिव। तो ये कुछ और एक एग्जांपल है इवैल्यूएटिंग लिमिट बाय फैक्टरिंग एंड कैंसलिंग। यहाँ पे दो एग्जांपल है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर और लिखा है कि यहाँ पे बॉटम में 2x² माइनस 5x माइनस 3 x², ऊपर में लिखा है x² माइनस 5x। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू फिर पुट, मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या किया, x कॉमन ले लिया, देन x माइनस 3 कर दिया, और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी क्या आता है, ये हाँ 2x² माइनस 5x, तो क्या आ जाएगा, x उसको सॉल्व करेंगे, 2x को प्लस 1 कर दिया, ये कॉमन ले दिया, x माइनस 3 को कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा ऊपर और नीचे का वैल्यू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं 3, एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6 एंड प्लस 1 7। तो ये हमारा वैल्यू है फैक्टरिंग मेथड में। फैक्टरिंग मेथड मतलब जैसे कॉमन लेके करते हैं, और कैंसिलिंग मेथड। तो और नेक्स्ट में है लिमिट बाय मल्टीप्लाइंग कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें रूट ओवर है ऊपर, यहाँ पे और नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे x का देखिए -1 है, तो यहाँ पे फिर से वो करेंगे जो पहले किया था। कंजुगेट मतलब जैसे दोनों ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना कंजुगेट मेथड में। हाँ, तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस 1, तो नीचे भी x प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x प्लस 1 से नहीं, ये वाला रूट ओवर x प्लस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में ऊपर और नीचे रूट ओवर x प्लस 2 प्लस 1, तो दोनों मल्टीप्लाई
ओवर तो हट जाएगा ऊपर से ना, रूट रूट हाँ कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 2, यहाँ पे 1 and 1, हाँ, और ये आ गया हमारा वैल्यू x+1, x+1 आ गया, नीचे हो गया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 देन रूट ओवर x+2 +1 से। तो यहाँ पे कैसे x+1 आया, ये तो x इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, स्क्वायर आता है, स्क्वायर तो हट जाएगा, हटने के बाद यहाँ पे माइनस भी है, माइनस वो करके ये वैल्यू आता है, देन x+1। तो यहाँ पे x टेंस टू -1 है, -1 वैल्यू रखेंगे x में, है ना, -1 और यहाँ पे 1 के साथ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 2 होगा शायद, x+2 -1 इस वाले में 2 होना चाहिए, बिकॉज देखिए हम अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं, x का वैल्यू -1 रखते हैं, देन -1 +2 होगा, तभी तो हमारा 1 वैल्यू आएगा ना यहाँ पे। हाँ हाँ तो ये यहाँ पे देखिए SLM में कुछ कुछ गलतियां मिलेंगी आप लोगों को भी, थोड़ा वो रेक्टिफाई, आई थिंक सॉफ्ट कॉपी तो रेक्टिफाई है, बट जो हार्ड कॉपी है ना शायद उसमें थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा क्या कभी और कुछ ज्यादा ही मिस्टेक मिल जाने का वो है, तो ये सब थोड़ा देख लेना, यहाँ पे 2 होना चाहिए जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, और फिर नीचे का वैल्यू में माइनस वो कर दिया, x का वैल्यू -1 कैंसर, देन सिर्फ बचेगा ये, यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें, x का वैल्यू इनपुट करने के बाद -4 √2, हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे -1 करेंगे तो -1 और ये कट जाएगा ना, और अगर हाँ 2 है -1, अच्छा हाँ -1 इधर, +1, -1 और +1 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट ओवर है, रूट नहीं ओवर, रूट ओवर है तो काटेगा नहीं, तो रूट ओवर हाँ में तो नहीं काटेगा। रूट ओवर है तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 कैसे आ गए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो डिफिनेशन अभी यूनिट 10 में जाते हैं, यूनिट 9 का यहाँ तक है, और यूनिट 10 definition of the continuous function, a real value, एक मिनट, ज्योतिमयी अभी तक नहीं आया ना, शायद वो अटेंड नहीं करेगा। A real value function fx is said to be continuous at a point x equal to a। यहाँ पे रियल वैल्यू कब बोलेंगे fx को, जब x equal to a होगा। If fx is defined at x equal to a, that is fa is a finite real number, जब finite real number होगा तभी। Then limit of fx exists at x equal to a, that is limit x tends to a होगा, टू द पावर माइनस है यहाँ पे, a टू द पावर माइनस मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर पॉजिटिव साइन, जो प्लस साइन है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये पहले भी डिस्कस किया है, कंटिन्यूअस जब होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद और कंटिन्यूअस में थोड़ा सिमिलरिटी है, देखिए यू कैन रिलेट। पहले हमने देखा लिमिट एग्जिस्ट कब करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करे, मतलब इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे वही चीज लिखा है फिर से, कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट ऑफ fx exists at x equal to a, that is left hand side and right hand side are equal। लिमिट x टेंड्स टू a, fx equal to fa, ये भी कंडीशन लिखा है, जब fx equal to fa, तो दोनों वैल्यू अगर सेम होगा, इधर का लिमिट और l वैल्यू, ये l वैल्यू हो जाएगा। सो ये डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a real value function fx is said to be continuous, ये फिर से लिखा है,
सेम थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे और डिटेल में लिख दिया, सच दैट fx माइनस fa मैग्नीट्यूड लेस देन ये whenever x माइनस, ये वाला कंडीशन याद रखना है इक्वेशन में। और कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए डोमेन लेट डी, ये क्या है, सबसेट ऑफ R and f colon D tends to R is a function, then f is said to continuous in the domain D if f is continuous at every point of D। यहाँ पे f अगर continuous in every point of D होता है, then क्या होगा, D is a subset of R and f colon D tends to R, ये हो जाएगा हमारा continuous function in domain। एंड यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन इन डोमेन में एग्जांपल है हमारा लीनियर फंक्शन। क्या क्या है, लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये 3, 4 और 5 फंक्शन होता है एग्जांपल कंटिन्यूअस फंक्शन का। अब पहले देखते हैं लीनियर फंक्शन में। लीनियर फंक्शन में क्या है कि अगर fx इक्वल टू, यहाँ पे लीनियर होगा, यहाँ पे स्क्वायर और ये सब नहीं होगा बिल्कुल भी, लीनियर में एक लाइन की तरह होगा। तो 2x plus 3 और jx इक्वल टू माइनस 4x, ये माइनस प्लस हो सकता है। दे रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन्स, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर फंक्शन में, दैट हैव अ कांस्टेंट स्लोप। यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप होगा एग्जिबिटिंग ए कंटिन्यूअस एंड अनब्रोकन ग्राफ, जैसे कर्व लाइन में नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा और स्लोप जो है वो क्या है, कांस्टेंट होगा अक्रॉस द एंटायर डोमेन। और पॉलिनोमियल में फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एंटायर डोमेन में स्मूथ कर्व होगा, स्मूथ कर्व जैसे पहले हम वीडियो में दिखाया था ना, वैसा उस तरह से स्मूथ कर्व होगा, ऐसा तेरा मेरा कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा नहीं होगा, स्मूथ कर्व होगा पॉलिनोमियल में। और यहाँ पे देखिए फंक्शन एज hx इक्वल टू x टू द पावर 2, यहाँ पे पावर होगा, लीनियर में कोई पावर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे x टू द पावर 2 और kx का x टू द पावर 3 भी हो सकता है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 1 आर कंटिन्यूअस अक्रॉस देयर एंटायर डोमेन। So they are smooth curves without any abrupt change or hole। जैसे मैंने बोला कि बहुत smooth curve होना चाहिए polynomial, then we can say that it's polynomial function। Trigonometric function में क्या है, function like sin x और cos x, cos theta, ऐसा कुछ अगर sin लिख दिया तो वो क्या बोलेंगे हम, trigonometric function। और continuous over their domain, they represent periodic waves होगा without any break and discontinuity। तो इसमें periodic waves कैसा होगा, स्मूथली करके कभी ऊपर भी आ सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन zigzag फॉर्मेट में नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में क्या है कि फंक्शन सर्व्स एज 1/x, इस तरह से अगर फ्रैक्शनल वो इनपुट मिलता है then we can say it's a rational function except at the point where the denominator becomes 0। जैसे नीचे का अगर 0 हो जाता है तब अलग केस होगा। at that point क्या होगा, the function is not defined। अगर नीचे का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 अगर होता है तो क्या करेंगे हम, function is not defined leading to discontinuity। तो अगर ये वैल्यू 0 नहीं है, it's not equal to 0, then हम continuous function मान सकते हैं। अगर 0 हो गया x का वैल्यू then it is leading to a discontinuity। तो नेक्स्ट है हमारा पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन में क्या होता है, that defined by different equation for different intervals can be continuous or discontinuous। यहाँ पे केस दो तरीका हो सकता है, या तो continuous होगा या तो discontinuous होगा based on the nature of these pieces। For example यहाँ पे दिया है fx equal to ऊपर का जो वैल्यू है x स्क्वायर है
लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कंडीशन, और नीचे तक के माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है माइनस एक्स वैसे भी 0 से नीचे ही है, मतलब स्मॉलर देन 0 है, देन इट्स कंटिन्यूअस। अगर प्लस वैल्यू है तब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर नेगेटिव वैल्यू है तब 0 से लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, देन इट्स सेड टू बी कंटिन्यूअस एज x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा, because both x square and minus x square means smoothly at that point, वहां पे मिलता है smoothly। रिव्यू ऑफ लिमिट्स, अब लिमिट्स का थोड़ा रिव्यू करते, क्या सीखा। कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट उसके बेसिस पे हमारा कंटिन्यूटी डिसाइड होता है। रिकॉल करते, लिमिट x टेंड्स टू a fx और fa, both are essential to define continuity. Definition of continuity at a point, जैसे a function fx is continuous at x equal to a if fa is defined. Limit x tends to a fx exists, limit x tends to a fx equal to fa, तब exist होगा। तो ये सब हमने देख लिया है, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरवल हमारा क्या था, ओपन इंटरवल में फर्स्ट ब्रैकेट से हम करेंगे a कॉमा b, क्लोज इंटरवल क्या होते हैं थर्ड ब्रैकेट से, ठीक है। और ग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं मैडम। हाँ ठीक है, कुछ डाउट होने से बीच में रोक देना। हाँ ओके ओके। तो यहाँ पे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। यहाँ पे क्या मतलब है कंटिन्यूअस विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, मतलब एक ही स्मूथ लाइन में अगर तुम्हें पेंसिल को मूव, मतलब क्या होता है ऊपर उठा के जब लिखना पड़ता है, then that is not continuous। जैसे मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, हम पेंसिल एक बार ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और स्मूथ कर्व होगा तो एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं। जब कर्व जैसे जिगजैग होगा तो हमें उठाना पड़ेगा कभी कभार, तो ऐसा होने से हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। नो ब्रेक, जम्प्स और होल्स इन द ग्राफ, हाँ ये होना चाहिए। Visual intuition for continuity, continuity of common function, common function क्या क्या है, continuous और on their domain में polynomial function, rational function होना चाहिए, except where denominator equal to 0, ये याद रखना। trigonometric जैसे मैंने already समझा दिया, exponential logarithm, यहाँ पे exponential and logarithm मैंने नहीं दिखाया, ये आई थिंक तुम लोगों का एसएलएम में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, तो मैंने बस यहाँ पे आइडिया के लिए दे दिया। जब लॉग और ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा कि वो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल में क्या होगा हमारा, जैसे पावर टू द पावर के ऊपर और एक पावर, ऐसा भी होने से एक्सपोनेंशियल कहा जा सकता है। लॉगरिथमिक जब फंक्शन क्या होगा, लॉग जब लिखा होगा, तो ये शायद तुम लोगों का एसएलएम में नहीं है अभी। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन में इफ fx इज कंटिन्यूअस एट a एंड gx इज कंटिन्यूअस एट fa, यहाँ पे देखिए fx इज कंटिन्यूअस एट a, ये a वेरिएबल है, ठीक है, आर्टिकल a में, and gx is continuous at fa, then gfx is continuous at a। तो fx अगर a में continuous है तो gx अगर fa में continuous है, then gfx is continuous at a वेरिएबल। तो important for complex function evaluation के लिए यूज किया जाता है ये composite function। यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम पहले भी कर चुके हैं, हम थोड़ा सा और देखेंगे। यहाँ पे ये एसएलएम से वो लिया है, discontinuity in a real value function occurs at a point where the function fails to meet the criteria for continuity। जब continuity फेल होता है then
it is called discontinuity. Formally, a function fs is discontinuous at a point A if at least one of the following condition is true. कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगा. एफ ए इज अनडिफाइंड. अगर हमारा एफ ए का अनडिफाइंड है, कुछ वैल्यू पता ही नहीं है, देन इट इज डिसकंटिन्यूटी. ऐसे बोलेंगे हम. द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस ए डज नॉट एग्जिस्ट. जिससे पहले हम अभी देखा ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एज एट ए एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एज एफ ए. तो इस तरह से अगर नहीं डिफाइन है लिमिट का फंक्शन, then it does not exist. The limit of function as x approaches a exists, but it is not equal to fc. देखो, जब एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होगा, जैसे fc से इक्वल नहीं होगा तब भी नहीं एग्जिस्ट होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा. सो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में देखिए 1a B, C, D होता है. 4 तरीका का डिसकंटिन्यूटी टाइप्स होता है. फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. जानते ही ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? occurs when a function has a hole or gap at a certain point. सपोज मान लो तुमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ का जो ऐसा कनेक्शन है वो टूट गया, मतलब बीच में there is a gap, then वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा. बट इट कैन बी रिडिफाइंड एट दैट पॉइंट टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस. रिडिफाइन करके हम वो कंटिन्यूअस बना सकते हैं. सो मैथमेटिकली दिस इज एक्सप्रेस्ड एज लिमिट x tends to a fx existing but fa is undefined or different. जैसे यहाँ पे हमने पहले कंडीशन में यहाँ पे देखा, अगर एफ ए इज अनडिफाइंड तो वो डिसकंटिन्यूटी होगा. ठीक है. और जंप डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे क्या है? ए जंप डिसकंटिन्यूटी arises when the function jumps from one value to another at a specific point without having a limiting value that bridges the gap. Mathematically ये कैसे डिपिक्ट होता है? As limit x tends to a to the power negative sign fx not equal to positive sign. मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का मेल नहीं है. अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या बोलेंगे हम? जंप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे. सो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा? occurs when function approaches an infinite value, positive or negative value, infinity होगा at a particular point. This happens when the limit of the function as x approaches a result is a unbounded value. Unbounded value मतलब दोनों का लिंक नहीं है, then infinite discontinuity बोलेंगे. Oscillating discontinuity, an oscillating discontinuity कब होगा? Also known as essential or non-removable discontinuity, happens when the function oscillates infinitely near a point without having a limiting value. The function exhibits erratic behavior without converging to a specific value. यहाँ पे देखिए ये क्या है? Essential or non-removable discontinue होता है, happens when function oscillate infinite near a point. Infinite value अगर कुछ आ जाता है, जब जीरो से अगर हम कुछ वैल्यू डिवाइड करते तो वो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो when it is equal to zero, तब क्या होगा? डिनोमिनेटर जब इक्वल टू जीरो होगा तो इन्फिनिट ऑसिलेट क्या होगा? इन्फिनिट नियर है पॉइंट विदाउट हैविंग ए लिमिटिंग वैल्यू. तो इन्फिनिट वैल्यू जब हो जाएगा तब ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे. तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं डिसकंटिन्यूटी का, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का और जंप डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे देखिए द फंक्शन fx इक्वल टू x टू द पावर स्क्वायर 2 मतलब x स्क्वायर माइनस 4 and नीचे डिनोमिनेटर में x minus 2 has a removable discontinuity at x equal to 2. तो x equal to 2 मतलब ये fx, x का वैल्यू जब 2 है तब removable discontinuity है.
where the graph has a hole that can be filled by refining the function at that point. यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है, ये SLM से। मान लो कि यहाँ पे हमने x का वैल्यू दिया, का वैल्यू दिया 2 टू द पावर, मतलब 2 होगा तो 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 4 0 होगा, यहाँ पे भी 0, तो 0 0 होगा, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है। इस वैल्यू जब x इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे कुछ और डालते हैं तब नहीं होगा, ओनली व्हेन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हैपेंस व्हेन x इक्वल टू 2, ठीक है। और जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या है, द फंक्शन gx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x लेस देन 0 होगा एंड x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन दिया है। ऐसे जंप डिसकंटिन्यूटी कब है, एट x इक्वल टू 0, जब हम x का वैल्यू 0 देखेंगे। ये कंडीशन कौन सा है पता है ना, ये वाला, कौन सा देखा था, ये वाला रिसेसिव। ये जब x इक्वल टू 0 होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, तो 0 होगा तो बोथ ये दोनों मीट स्मूथली, ये डिसकंटिन्यूटी, ये तो कंटिन्यूअस है, वेट, हाँ नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना जंप डिसकंटिन्यूटी में। तो यहाँ पे देखिए हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो गया, 0 डाल दिया तो 0 प्लस 1 1 होगा, तो ये हो गया 0 एंड प्लस 1, तो नॉट इक्वल। यहाँ पे 0 डालेंगे तो नॉट इक्वल। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 डालते हैं तो 2, यहाँ पे 2 तब भी नहीं इक्वल है, यहाँ पे 2 में भी नहीं इक्वल, जंप कंटिन्यूटी हो जाएगा। Where there is a clear jump from gx equal to x to gx equal to x plus 1, ये वैल्यू सेम नहीं है, तभी हमारा जंप डिसकंटिन्यूटी होगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये थोड़ा देख लेना। इफ f इज कंटिन्यूअस, IVT शॉर्ट फॉर्म है इसका, एब्रिविएशन है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन, ये क्या है, क्लोज बाउंड बोलते हैं ना, क्लोज इंटरवल, तो a, b and n is between fa and fb, then there exists c belongs to a, b such that fc equal to n. Application of IVT मतलब intermediate value theorem में proving the existence, मतलब क्या करते हैं ये एक्चुअली, proving the existence of solution, root finding methods and real world modeling problems को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सीखा, ये सब हमने सीखा। IVT थोड़ा डिटेल में देख लेना, SLM में इतना डिटेल में नहीं दिया, बट जो भी है वो थोड़ा देख लेना, रिव्यू कर लेना। और ये सब सेल्फ असेसमेंट है, ये SLM से ही है, तो कुछ देखिए कैसे दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आंसर